Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the class of this week, the first class of this week, rather. And as you must be remembering that we were discussing the legal structures of business organizations. So moving on, previously we studied proprietorship or the sole trader, and then we discussed the partnership companies. And next, today we'll move on to study what is a limited partnership. So here some partners provide capital but take no part in the management of the business. Now such partners who are only providing the capital are having the limited liability. And these partners are also called the sleeping partners. So for a limited partnership, at least one partner should have unlimited liability. So the sleeping partner cannot be made to sell his own possessions, right? As we did in the limited liability. Remember what we said in the limited liability? That their personal assets are not at stake. But here, as we are saying that at least one partner must have unlimited liability, means his personal asset must be at stake. So this is the limited partnership. And the next is limited liability partnership. What is limited liability partnership? This is only for your knowledge, in which the liability of all the partners is limited. It's like a limited company, but it's a partnership. And most of the cases, such type of LLPs, limited liability partnership, exist in the law firms. Okay. Moving on, we next have the limited liability companies, limited liabilities. So limited liability means if business fails, the shareholders' personal assets are protected. They have legal personality, means have a separate legal identity from its owners, and the death of owner or director does not impact the business. For the legal personality or the separate legal identity, you may have the example that if you are doing a business with a limited company, with the name of a limited company, it means your company is treated as a person itself. And if something happens and something someone likes to bring you into the court of law, they will take your company as a person and bring that company into the court of law like a proprietorship or a partnership as a person. So a company can be sued and can itself sue through the courts, right? It means it has a personality, it has a legal identity which is separate from the owners. And same is the continuity, means it will continue to do the business if an owner or director leaves the business, or in case of the death of the owner or any director, the business will keep on going, as opposed to partnership and proprietorship, where in the case of death of a proprietor, the business ceases to exist, right? So these are the major differences between the limited companies and the other legal structures of the business. So in the legal, in the limited companies, we have two types of companies. One is the private limited company and the other is public limited company. Okay, we see what is a private limited company. Often it is family owned business
which is owned by most of the time family members or very close friends or relatives. Here the shares are the transferred privately and there is no sale for general public. Now what is share? Share is a डॉक्यूमेंट इज आप ये समझ लें कि एक रिसीट होती है जो ये शो करती है कि आपका इस बिजनेस में कितना हिस्सा है, यानी आपका जितना कैपिटल होता है उसको शेयर्स की सूरत में उसको डिवाइड कर दिया जाता है. लाइक इसको आप ऐसे समझें कि अगर 1000 रुपया आपका कैपिटल है तो हमने क्या किया, हमने 1000 रुपए के कैपिटल को 10-10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर दिया. तो कितने शेयर्स बन गए? 100 शेयर्स. अब ये 100 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग्स्ट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. लाइक हम 10 ओनर हैं या चलो 5 ओनर्स हैं और 100 शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं. इट मींस कि हर जो ओनर है वो 20 शेयर्स ले लेगा. तो शेयर्स एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ये शो करता है कि आपका इस लिमिटेड कंपनी में कितना शेयर है, कितना हिस्सा है. राइट? तो ये शेयर को याद रखें. हम शेयर्स पे मजीद डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंस के पोर्शन में. उसमें टाइप्स ऑफ शेयर्स भी देखेंगे. ओके, तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेंड टू बी रिलेटिवली स्मॉलर बिजनेसेस. लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें फ्रॉम पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर से तो उससे ये निस्बतन बड़ी होती है. लेकिन आगे हम चल के जो देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उससे ये निस्बतन छोटा होता है ये बिजनेस. ओके, इसमें अब एडवांटेजेस क्या हैं? रिमेंबर जो हमने आप पीछे चीजें पढ़ी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. सबसे बड़ा एडवांटेज कि इन केस ऑफ बैंक्रप्सी तो जो शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स हैं वो एट स्टेक नहीं होते. ऑल द एसेट्स which belong to that company, those can be sold and the finance or the loan can be paid off, but not the personal assets of the shareholders. और remember कि ये जो shareholders होते हैं यही owners होते हैं कंपनी के. right? okay, तो दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि जो कंट्रोल है कंपनी का वो आउटसाइडर्स की तरफ लूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने शेयर्स ही अमंग्स द फैमिली मेंबर्स रखे हुए हैं, अमंग द क्लोज रिलेटिव्स रखे हुए हैं. तो जब शेयर हमने पहले कहा कि जनरल पब्लिक को सेल ही नहीं किए जा सकते, तो फिर आउटसाइडर्स को इसका कंट्रोल भी लूज नहीं हो सकता, नहीं दिया जा सकता. अब अगर हमें मजीद कैपिटल की जरूरत है तो हम मजीद कैपिटल भी रेज कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने शेयर होल्डर्स रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे. हम मजीद शेयर इशू करके कैपिटल भी रेज कर सकते हैं. और अगर जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर कोई ओनर, कोई डायरेक्टर कोई छोड़ जाता है या इवन उसकी डेथ हो जाती है तो तब भी बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी वैसे ही रहेगी. डिसएडवांटेजेस की बात करें, यस, इसका लीगल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है टू एस्टैब्लिश अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हम लीगल प्रोसीजर को थोड़ा सा देखेंगे जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ लेंगे उसके बाद कि इसमें क्या दोनों में लीगल फॉर्मेलिटीज आती हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज में डिफरेंस क्या है. एनीवे, अब यहां पे क्या है कि फर्म्स को ये भी इजाजत नहीं कि वो अपने शेयर्स को सेल कर सकें टू द जनरल पब्लिक. ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितना आपको ये प्रिविलेज मिलेगा कि आप अपने शेयर्स को सेल कर सकें उतना आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप अपना कैपिटल भी ज्यादा रेज कर सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट्स जो हैं उनको शेयर किया जाता है अमंग्स्ट द मेंबर्स. मेंबर्स से क्या मुराद है? जो आपके शेयर होल्डर्स हैं कि उनके दरमियान. अब हमने जो बात की थी कि सोल ट्रेडर के केस में सारे का सारा प्रॉफिट उसी का है. पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि प्रॉफिट्स को अमंग्स्ट द पार्टनर्स आप शेयर करते हैं और यहां पे भी अमंग्स्ट द शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है. और कैसे शेयर किया जाता है? ये एनुअल डिविडेंड की सूरत में शेयर किया जाता है कि यानी सारे आप अपने जब आप एनुअल अकाउंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सारे आप टैक्सेस, सारे एक्सपेंसेस, ये वो सब कुछ निकाल के, इवन इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल के, तो जो आपका रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग बच जाती है
फिर उसमें से आप डिसाइड करते हो कि हमने शेयर होल्डर्स को कितने पैसे या कितना प्रॉफिट देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट। अब ये भी जरूरी नहीं होता, ये एक फायदा इसमें ये है कि हर साल डिविडेंड देना भी जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट पे, राइट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आया हमने इस साल इनको डिविडेंड इन प्रॉफिट देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या नहीं देना। हो सकता है उनका प्रोग्राम हो एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन के केस में वो कहेंगे कि जी हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग को हम री इन्वेस्ट कर दें बजाय इसके कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग्स्ट द शेयर होल्डर। तो इट डिपेंड्स, ये लाजमी नहीं है कि हर साल उनको डिविडेंड दिया जाए, राइट। और एक चीज और कि आपने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हर साल जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उसके पास अपने सबमिट करवानी होती है हर साल। बल्कि जो आपके अब तो रिक्वायरमेंट ये हो गई है कि आपके क्वार्टरली जो है फाइनेंशियल्स अपने सबमिट करवाने होते हैं। अब नेचुरली जब आपने रजिस्ट्रार के पास अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करवा दी, नाउ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर योर कंपेटिटर्स एज वेल, दे कैन इंस्पेक्ट। और जब आपके एनुअल अकाउंट्स बनते हैं जो आपके पब्लिश किए जाते हैं बाकायदा, वो तो सबके पास अवेलेबल होते हैं। आपके कोई भी शेयर होल्डर ले सकता है, कोई भी कंपेटिटर ले सकता है। आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो अब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, so these financial information or the financial records are also available on the website of the companies. You can have a look on those financial informations on their websites. अब किसी की बड़ी अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपको इनके फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। हबीब बैंक पे चले जाएं, यूबीएल पे चले जाएं, आप किसी भी ओजीडीसीएल पे चले जाएं तो आपको सबके फाइनेंशियल्स ऑनलाइन मिलेंगे। ओके, प्राइवेट लिमिटेड के बाद आपकी आ गई नेक्स्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाउ अगेन इट्स अ लिमिटेड कंपनी बट इट इज नाउ अ लार्जर कंपनी एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। क्यों लार्जर हो गई? क्योंकि हमने क्या किया, हमने शेयर्स को पब्लिक कर दिया। नाउ दीज शेयर्स कैन बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जैसे मैंने पहले बात की, क्यों हमने जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल किया, क्यों हमने सेल आउट किया, इन ऑर्डर टू रेज मोर कैपिटल, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड। तो अब हमने बहुत ज्यादा कैपिटल रेज करने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना ली। नाउ दीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कंट्रीब्यूट मोर टू द नेशनल आउटपुट एंड दे एम्प्लॉय ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे हमने कहा कि ये सबसे बड़ी होती हैं तो नेचुरली इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप और द सोल ट्रेडर। और जब इनके एक्सपेंशन ज्यादा है, ये ज्यादा ग्रो किए हुए हैं, तो इनका जो नेशनल आउटपुट में इनका हिस्सा है वो भी ज्यादा होगा। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं? अगेन वही एडवांटेजेस जो प्राइवेट लिमिटेड में थे ऑलमोस्ट, कि इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और ड्यू टू देयर लार्जर साइज वो अपनी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। और यहां पे एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि उनके लिए फाइनेंस रेज करना बहुत इजी है, बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज, दे हैव मोर ऑप्शंस। वो अपने शेयर्स ही इशू करके, मजीद शेयर इशू करके जनरल पब्लिक को सेल करके तो क्या करते हैं, अपना फाइनेंस रेज कर लेते हैं, राइट। और रिमेंबर, जब भी कोई कंपनी पब्लिक हो रही होती है यानी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उस चीज को हम, जो फाइनेंस की टर्म है उसको हम कहते हैं आईपीओ, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पहली दफा लोगों को यानी जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं कंपनी के शेयर्स, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उस पर एक सर्टेन प्राइस सेट कर दी जाती है कि भाई ये इसकी प्राइस है इस शेयर की, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं। या एक सर्टिफिकेट जो होता है वो कहते हैं जी मिनिमम 500 शेयर्स का एक सर्टिफिकेट है, उसकी प्राइस इतनी होगी। तो वो थ्रू मतलब आप SECP जो है अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद अगर तो जो लोग हैं शेयर खरीदने वाले उतने ही हों जितने उनको चाहिए तो फिर सबको मिल जाते हैं। अगर ज्यादा लोग अप्लाई करें तो फिर क्या होती है, कुरानदाजी की जाती है और उसके जरिए से जिनके नाम निकले। और यहाँ पे क्योंकि ये लार्जर इन साइज है तो दे अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी क्या कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द बल्क
प्रोडक्शन, बल्क बाइंग, बल्क मार्केटिंग टेक्निक्स एटसेट्रा, ये हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तफसील से पढ़ेंगे। सिर्फ आप ये याद रखें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या मुराद है कि व्हेन योर प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, तो ये इनको एक फायदा ये भी होता है। और जैसे हमने पहले कहा कि शेयर्स को सेल करके ह्यूज सम ऑफ मनी दे कैन जनरेट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सेटिंग अप कॉस्ट्स आर वेरी हाई, जो हमने पहले भी जिक्र किया, एक लीगल प्रोसीजर होता है और उसको फॉलो करना होता है ना। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में हमने कहा कि आउटसाइडर्स को हम अपना कंट्रोल लूज नहीं करते, बट व्हाट हैपेंस हियर, आउटसाइडर कैन टेक द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। भाई जाहिर है अगर जनरल पब्लिक को जनरली अवेलेबल है शेयर्स, और अगर कोई भी बाहर का बंदा शेयर्स ज्यादा परचेज कर लेता है, रिक्वायरमेंट क्या है एज पर लॉ कि जिसके पास 51% शेयर्स होंगे उस कंट्रोल उसका होगा, जिसके पास भी 51% शेयर्स होंगे। तो बस अब कोई भी अगर 51% शेयर्स खरीद लेता है तो उस बिजनेस का कंट्रोल उसके पास चला गया, राइट। कंपनीज अकाउंट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और यहाँ पे कोई पर्सनलाइज्ड सर्विसेज नहीं होती, जैसे हमने बात की थी किसमें, सोल ट्रेडर के केस में और पार्टनरशिप के केस में। नेचुरली पर्सनलाइज्ड सर्विसेज इतनी बड़ी कंपनी जो है वो किसी को नहीं दे सकती, या बहुत मुश्किल है। आजकल इंटरनेट के जमाने में फिर भी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हो जाती हैं। डिफरेंट एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस कंपनीज एक्ट्स, डिफरेंट लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। And there may be divorce of ownership and control. What we mean by divorce of ownership and control means, जैसे हमने पहले भी बात की कि कंपनी के ओनर्स और हैं और उनको चलाने वाले और हैं, दोनों में फर्क है। The shareholders are the owners of the company, और कंट्रोल किनके पास है? मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं और नीचे फिर पूरी चेन जो उस कंपनी को रन कर रही होती है, तो कंट्रोल उनके पास है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है। तो डाइवोर्स, दोनों अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इनफ्लेक्सिबल, यानी ऑलमोस्ट रिजिड किस्म की होती हैं कि उनमें, लेकिन आजकल के जमाने में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी कंपनीज ने शो करना शुरू कर दी है। चेंजिंग डायनामिक्स के साथ वो भी अपने आप में उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज टू रिमेन इन द कंपैटिटिव वर्ल्ड, एल्स वो तो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए इनफ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन आजकल के जमाने में उनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना पड़ती है। जी, अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड कंपनी को कैसे बनाया जाता है। जो हमने पहले बात की कि लिमिटेड कंपनी बनाना थोड़ा सा एक लीगल प्रोसीजर भी आती है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। प्राइवेट लिमिटेड में तो उतनी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ओके, दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी, वेदर इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मस्ट होने चाहिए दोनों के पास। नाउ बड़े लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन हम में ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं, हम जस्ट 3-4-6 पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या होता है। लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या डिटेल्स आ जाती हैं कि इस कंपनी का नेम क्या होगा, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, यानी कहां पे उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है जहां पे उसने ऑपरेट करना है, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होंगे, तो वो एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर उनके मेंबर्स की लायबिलिटी का जिक्र होगा और अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कितना कैपिटल वो रेज करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होगी और फिर उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और हर शेयर की प्राइस क्या होगी। ये सारा कुछ आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके अलावा बहुत सी क्लॉजेज होती हैं, हम इतनी तफसील में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ दैट डील्स विद द इंटरनल रनिंग ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या क्या होता है जी, कि शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे। राइट्स आमतौर पे वोटिंग राइट्स होते हैं, कि वो कैसे वोटिंग राइट्स को यूज कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स कैसे होंगे, पर शेयर होल्डर आमतौर पे 1 वोट का राइट होता है। फिर उनका प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर एंड द स्कोप ऑफ देयर पावर्स। ठीक है ना, मैंने जैसे पहले कहा कि डायरेक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और ओनर जो है वो कौन है, शेयर होल्डर्स। तो डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनका लेंथ ऑफ सर्विस क्या होगी, उनकी पावर्स कितनी होंगी, राइट,
क्या वो री इलेक्ट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, अगर री इलेक्शन होना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ किस में आ रहा है, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फिर टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपनीज मीटिंग, एक साल में वो कितनी दफा मीट करेंगे, राइट। और एक चीज जो होती है जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, वो वंस इन अ ईयर लाजमी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग का क्या मतलब होता है कि जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द चेयरमैन और जितने आपके शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें आके शिरकत करते हैं और कंपनी के डिफरेंट जो अमूर हैं, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, उनको फाइनलाइज किया जाता है फॉर द अपकमिंग ईयर। और इसी एनुअल जनरल मीटिंग में ये भी डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना देना है, राइट। तो ये एक दफा साल में एनुअल जनरल मीटिंग जरूर होती है। इसके अलावा अगर कोई मीटिंग्स हो तो उनको उनकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और फिर एक चीज और के ऑडिटिंग फर्म जिसने के अकाउंट्स को, कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी अरेंजमेंट भी इसी डॉक्यूमेंट में होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की फॉर्मेशन में। तो देखिए, अगर आप स्लाइड पे देखें तो दो चीजें कॉमन हैं, पहली बल्कि तीन कॉमन हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी रिक्वायर्ड है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी रिक्वायर्ड है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स तो सेम हो गए। अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जाना है टू द जनरल पब्लिक, तो उसके लिए अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या आया जाएगा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि हमने शेयर्स को कैसे सेल करना है, शेयर्स की प्राइस क्या होगी, एक शेयर सर्टिफिकेट कितने का होगा, वगैरह वगैरह। और उसकी बेस पे प्रॉस्पेक्टस बनेगा जिसमें ये सारी तफसीलात होंगी और अंडरराइटिंग की जाएगी। अंडरराइटिंग क्या होगी कि कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके बिहाफ पे एक्ट करेगा और अंडरराइट करेगा कि आपके शेयर्स अगर नहीं बिकते जनरल पब्लिक में तो फिर सारे के सारे शेयर्स मैं परचेज कर लूंगा और उतना कैपिटल आपको मिल जाएगा। यानी वो अंडरराइट कर रहे होते हैं, अंडरटेक कर रहे होते हैं कि भाई जनरल पब्लिक को सेल करना है, हमारे थ्रू होगा, और अगर नहीं होता तो फिर हम परचेज करेंगे आपके शेयर्स को। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है? A company having enough shares in numerous other public limited companies to exert control. तो एक क्या बात आ गई कि एक कंपनी है लेकिन उसके पास मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स हैं। जैसे हमने पहले बात की, कितने शेयर्स हैं? 51% और मोर देन 51%, तभी तो कंट्रोल आएगा। तो जब एक कंपनी बहुत सी दूसरी कंपनीज की शेयर होल्डिंग को कैप्चर किए हुए है मोर देन 51%, तो इसका मतलब कंट्रोल उसके पास है उन कंपनीज का, और ऐसी कंपनी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का क्या, फिर उसके पास डाइवर्सिफाई रेंज आ जाती है कि डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक अगर एक कंपनी है वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी है, जैसे हम अगर बात करें निषाद ग्रुप की, तो निषाद ग्रुप ने अब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमसीबी भी है उसके पास, फिर उसके टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, फिर उसके एनर्जी सेक्टर में भी है। तो अब ये क्या हो रहा है कि उसने हर एक ऑलमोस्ट सेक्टर में अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लिया हुआ है और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री में। और होल्डिंग कंपनी का भी यही फायदा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट अदर कंपनीज के शेयर्स को परचेज करके उनका कंट्रोल हासिल करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, और इसीलिए वो सर्वाइव करते हैं मार्केट में। अगर एक मार्केट फेल भी हो जाती है तो दूसरी मार्केट में रहते हुए वो सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग डाइवर्सिफाइड रिस्क, राइट। आई होप होल्डिंग कंपनी आपको क्लियर होगी। आगे भी हम जिक्र आएगा इसका, तो हम मजीद इसको तफसील से देख लेंगे। और आज हम यहीं पे खत्म करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर 5 minutes we'll have the question answer session. Thank you.